نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم کے ملتان جلسے کے لیے مریم نواز جاتی امراء سے روانہ۔ مریم نواز رہنماؤں کارکنان کے قافلے کے ہمراہ روانہ ہوئی۔ برجس طاہر، مریم اورنگزیب، پرویز رشید، مجتبیٰ شجاع الرحمان، وحید عالم قافلے کے ہمراہ ہیں۔ جی ہاں، سیف الملوک کھوکھر، رانا مبشر اقبال، ملک ریاض بھی ہمراہ ہے۔ ایم پی اے ہنا، پرویز بٹ، اختر حسین، راو شہاب الدین بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اڈا پلاٹ بھوبتیاں چوک پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ کارکنان کو روکنے کے لیے پولیس کی جانب سے بیریئرز بھی لگا دیے گئے ہیں۔ قافلے کو روکنے کے لیے نہیں، سیکیورٹی کے لیے رکاوٹیں لگائی گئی۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ پولیس کے مطابق فی الحال قافلے کو روکنے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر یہ بیریئرز لگائے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ڈی ایم ملتان میں آج پاور شو کرنے جا رہی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے، ملتان انتظامیہ کی جانب سے کرونا وائرس کے پیش نظر بتایا جا رہا ہے کہ جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں سے مریم نواز قافلے کے ہمراہ روانہ ہو چکی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر اسلم۔ عمر اسلم، بتائے گا یہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا ہے، کہیں پر جو ہے وہ استقبال بھی کیا جائے گا؟ دوسری جانب ملتان میں تو ابھی تک جلسے کی اجازت نہیں ملی۔ جی بالکل، نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے آج جو ملتان میں جلسہ ہو رہا ہے اس حوالے سے شرکت کے لیے اب سے کچھ دیر کے قبل لاہور سے جو ہے وہ ملتان روانہ ہوئی ہیں۔ مریم نواز نے جو ہے وہ ریلی کی صورت میں جو ہے وہ وہاں پر ملتان روانہ ہوئی ہیں۔ مریم نواز کے ہمراہ مختلف ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی بھی ہیں، جبکہ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ذاتی غم پیچھے چھوڑ کر قوم کے غم کے لیے ملتان کے لیے نکل رہی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ملتان جلسے کو روکنے کے لیے غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا ہے اور مختلف رہنماؤں کو گرفتار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ ہر صورتحال میں کامیاب ہوگی۔ جلسہ جہاں بھی ہو، اندر ہو یا باہر، جلسہ ضرور ہوگا۔ حکومت کو اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے، جبکہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ جلسے پی ڈی ایم کے کامیاب جلسوں سے حکومت جو ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ مریم نواز ڈیلی کی صورت میں جو جاتی امراء رائے گنج سے ملتان کے لیے روانہ ہوئی ہیں۔ موٹر وے پر جو ہے وہ اس وقت ان کا قافلہ رواں دواں ہے۔ مختلف شہر سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی جن میں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، ملک ریاض اور رانا مبشر اقبال سمیت جو دیگر لیگی رہنما، سیف الملوک کھوکھر سمیت جو دیگر رہنما ہیں، وہ بھی جو ہے وہ ملتان گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت پی ڈی ایم کی کامیابی سے جو ہے جلسوں کی کامیابی سے بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ جی ٹھیک ہے عمر اسلم، آپ نے ہمیں آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ پی ڈی ایم کا ملتان میں پاور شو۔ مریم نواز کی ملتان روانگی سے قبل جاتی امراء میں میڈیا سے گفتگو۔ مریم نواز نے کہا کہ گھر سے ملتان ذاتی غم پیچھے چھوڑ کر نکل رہی ہوں۔ حکومت نے نہت پرامن کارکنان پر تشدد کیا ہے۔ ملتان کے گرد و نواح کو اکھاڑا بنا دیا گیا ہے۔ میاں صاحب کی ہدایت پر قوم کے جو اس وقت دکھ ہیں، قوم کے جو غم ہیں، اس میں میں شریک ہونے جا رہی ہوں۔ اور شاید میں، کیونکہ اس وقت میرے والد یہاں موجود نہیں ہیں، میری فیملی یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو جو لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ آپ ہونا چاہتے ہیں، شاید میں ایک دو دن اور ڈیلے کر دیتی اپنی ایکٹیویٹیز اور شاید یہ ملتان کا جلسے میں نہ جاتی۔ لیکن جس طرح انہوں نے غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح انہوں نے نہتے پرامن کارکنوں کے اوپر تشدد کیا ہے، ان کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، ان کو انہوں نے گھروں سے اٹھایا ہے، جس طرح ملتان اور اس کے سارے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہے اس کو اکھاڑا بنا کے رکھ دیا ہے، جو ظلم انہوں نے کارکنوں کے ساتھ کیا ہے، شہریوں کے ساتھ کیا ہے، وہ ظلم آج مجھے کھینچ کر ملتان اپنے بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو راستے میں لگا ہوا ہر کنٹینر ہے، راستے میں جو جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جتنے بھی ناکے لگے ہوئے ہیں، وہ سب لاہور کورونا کے وار جاری ہیں۔ کرونا وائرس لاہور میں مزید 4 زندگیاں نگل گیا ہے۔ لاہور میں کورونا کے 231 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ شہر میں کرونا کیسز کی تعداد 58,565 تک پہنچ چکی ہے۔ لاہور میں کرونا سے اب تک 1,195 اموات ہو چکی ہیں۔ کرونا وائرس سے لاہور میں مزید 4 زندگیاں جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی گنوا چکی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے۔ زاہد چودھری صاحب، بتائے گا کرونا کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟
जी, कोरोना वायरस जो है वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी शहर में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा देखने में आया। 231 नए मरीज़ जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ कोरोना वायरस से शहर में मज़ीद 4 अमवात जो हैं वो जो है वो उनकी तस्दीक की गई है। और अब तक इस वबा के दौरान जो लाहौर में मुतासरीन हैं उनकी तादाद 58,565 और 1,195 जो अमवात हैं अब तक वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें भी जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त भी जो है वो अस्पतालों में 100 के करीब जो है वो पेशेंट जो है वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में है, जबकि जो है वो इनमें से 25 मरीज़ जो है उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है। तो ये तादाद भी जो है वो अस्पतालों में 239 जो है इस वक्त जो है वो मजमूई तौर पर ज़ेर इलाज पेशेंट्स हैं। तो वो तादाद भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि अस्पतालों में भी मरीज़ न सिर्फ बढ़ रहे हैं बल्कि सीरियस पेशेंट जो है उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। जी ठीक है, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टर ज़ियाउल्लाह कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शेख ज़ैद अस्पताल में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह नेशनल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे मगर वो जामबर ना हो सके। बिल्कुल इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के डॉक्टर ज़ियाउल्लाह कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शेख ज़ैद हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे, जबकि प्रोफेसर ज़ियाउल्लाह नेशनल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे मगर वो जामबर ना हो सके। साबिक होम सेक्रेटरी हसन वसीम अफसल कोरोना के बायस शदीद अलील हैं। हसन वसीम अफसल म्यो हॉस्पिटल में ICU में ज़ेर इलाज हैं। तबीयत बिगड़ने पर हसन वसीम अफसल को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि साबिक होम सेक्रेटरी हसन वसीम अफसल कोरोना के बाद शदीद अलील हैं। हसन वसीम अफसल म्यू अस्पताल में ICU में ज़ेरे इलाज हैं। तबीयत बिगड़ने पर हसन वसीम अफसल को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और उन्हें इस वक्त वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। साबिक होम सेक्रेटरी हसन वसीम अफसल कोरोना के बाद शदीद अलील हैं। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में कोरोना वायरस के शिकार स्टाफ मेंबरान की तादाद 27 हो चुकी है। आपको बताते चले कि पंजाब असम्बली में भी कोरोना वायरस के एक के बाद नए केसेस सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में कोरोना वायरस के शिकार स्टाफ मेंबरान की तादाद 27 हो गई है। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि पंजाब असम्बली में कोरोना वायरस के शिकार स्टाफ मेंबरान की तादाद 27 हो गई। इस पर बात करेंगे अली अकबर से। जी अली। ये कोरोना की दूसरी लहर जो है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में मजबूरी तौर पर कोरोना के शिकार जो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है वो उनकी तादाद 27 हो चुकी है। 27 ऐसे पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के अफसरान और दीगर स्टाफ है जिनमें कोरोना जो है वो मुस्बत पाया गया है। जिनका कोरोना मुस्बत पाया गया उन्हें घर से जो है घर भिजवा दिया गया है और उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया था। हम अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सकी पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के उन्होंने अपना फुल स्टाफ के साथ काम करना है या हाफ स्टाफ के साथ काम करना है। तमाम पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से तमाम अफसरान को ये हदायत की गई है कि वो बिला वजह जो है पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की राहदारियाँ जो हैं वहाँ पे जो है ना बैठें, अपने ऑफिस में बैठे रहें और ऑफिस के अंदर बैठ के भी जो SOPs हैं ख़ासतौर पर मास्क का इस्तेमाल और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो करें और गैर ज़रूरी तौर पर जो है लोगों से मुलाकातें ना करें। इसी तरह पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जो गैर मुतलका अफराद हैं उनके भी दाखिले पर रियायत कर दी गई है। ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना से बचाव के लिए सामान की खरीदारी का यह मामला है। नैब ने म्यो हॉस्पिटल इंतजामिया से सामान की तफसीलात तलब कर ली, जबकि मास्क, ग्लव्स, हिफाजती किट्स की खरीदारी का रिकॉर्ड दिया जाए। नैब ने ये मुतालबा किया है। जी हाँ, नैब की जानिब से कहा जा रहा है कोरोना वबा के लिए मुख्तस फंड्स और इस्तेमाल का रिकॉर्ड दिया जाए। खरीदारी के लिए इश्तिहार, टेंडर का रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए। ठेकेदारों, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले अफसरान की फहरिस्त भी नैब ने तलब कर ली है। नैब ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान को खत लिखकर तफसीलात तलब की हैं। नैब की जानिब से कहा जा रहा है तमाम तर तफसीलात फराहम की जाएँ। कोरोना से बचाव के लिए सामान की खरीदारी के हवाले से आपको बताते चलें कि नैब ने म्यू अस्पताल इंतजामिया से सामान की तफसीलात तलब कर ली है। मास्क, ग्लव्स, हिफाजती किट्स की खरीदारी का रिकॉर्ड दिया जाए। नैब की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। नैब की जानिब से कहा जा रहा है कि कोरोना वबा के लिए मुख्तस फंड्स और इस्तेमाल का रिकॉर्ड भी फराहम किया जाए। खरीदारी के लिए इश्तिहार, टेंडर का रिकॉर्ड भी दिया जाए। ठेकेदारों और कॉन्ट्रैक्ट देने वाले अफसरान की फहरिस्त भी नैब ने तलब की है।
जी बिल्कुल, नैब ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील ऐवान को ख़त लिखकर तफसीलात तलब की हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नैब ने मे हॉस्पिटल इंतजामिया से भी इस हवाले से तफसीलात मांग ली हैं। कोरोना से बचाव के लिए सामान की खरीदारी का मामला, नैब ने मे हॉस्पिटल इंतजामिया से सामान की तफसीलात तलब कर ली हैं। मास्क, ग्लव्स, हिफाजती किट्स की खरीदारी का रिकॉर्ड दिया जाए, नैब ने यह मुतालबा किया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया इंसदाद पोलियो कैंपेन। इसका मकसद पाकिस्तान भर से जो वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है और फिर ख़ुसूसन पंजाब से पोलियो का सफाया करना, और मैं इस आज 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जिस मुहिम का बाकायदा आगाज़ हुआ है, मीडिया के तावन के लिए यहाँ अपील करने आई हूँ, क्योंकि सियासी डिस्कशन, गुफ्तगू और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं। आज चूँकि ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से है कि आज से आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अपाहज होने से बचाने के लिए एक तंदुरुस्त सेहतमंद हमारा जो मुस्तकबिल है उसको तरक्की और खुशहाली। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि हुकूमती गफलत और अवामी बेहतियाती उसके नतीजे में कोरोना वायरस जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से आपको बताएंगे कोरोना वायरस की सूरत हाल भी शहर भर में भी कशीदा होती जा रही है। और कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएंगे, अभी आपको बताएंगे तरक्याती फ़ंड्स के इस्तेमाल में वज़ीर आला पंजाब सबसे आगे हैं। डीजी खान में तरक्याती फ़ंड्स की कारकर्दगी 97% के साथ पहले नंबर पर, लाहौर टॉप 10 में 70% कारकर्दगी के साथ 5वें नंबर पर है। जी हाँ, तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल में वज़ीर आला पंजाब सबसे आगे हैं। डीजी खान में तरक्याती फंड की कारकर्दगी 57% के साथ पहले नंबर पर है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब का इलाका डीजी खान तरक्याती फंड की कारकर्दगी में 97% के साथ पहले नंबर पर है। तफसीलात जानेंगे अली रामे से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सूबाई जो अरकान असम्बली हैं और वफाकी MNA इनके लिए मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबाजात 2 सालों में मंजूर किए और इसकी जो मजमूई लागत है वो 50 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था, जिसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। अब जो एक प्रोग्राम वफाकी हुकूमत उसके लिए फ़ंडिंग करे और एक प्रोग्राम जिस पर पंजाब हुकूमत फ़ंडिंग करे, और इसमें दोनों में वज़ीर आला पंजाब अपने हल्के में और अपने ज़िला में सबसे आगे जा रहे हैं। उनकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो 97% जो है वो रिकॉर्ड की गई है वज़ीर आला पंजाब के ज़िला में और उनके हल्का में यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट जो बताई जा रही है। जबकि इसमें अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो लाहौर में जो तरक्की की रफ्तार है वो यकीनन बहुत सुस्त है और 5वें नंबर पर इस टाइम लाहौर जो है वो आ रहा है। उसमें यूटिलाइजेशन जो है वो 70% से ज़ायद बताई जा रही है। और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए बजट था, तो जिसमें 50 अरब रुपये का बजट और इसमें लाहौर के लिए 10 अरब रुपये से ज़्यादा का बजट जो है वो अप्रूव किया गया और उसमें बजट रिलीज़ भी किया गया और सबसे ज़्यादा स्कीमें भी पंजाब के जो। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। DGPR में मुआवन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही है। गठ और गठजोड़ जो है वो खुद भुट्टो के नज़रिए की नफ़ी है, जो अफराद उसमें शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, एक हमारी खातून ने यहाँ से सफ़र शुरू किया है और फरमाया कि मैं ज़ाती दर्द को पीछे छोड़ के बाहर निकली हूँ। ज़ाती दर्द आप छोड़ नहीं सकती क्योंकि आपकी सियासत अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात पे ख़त्म हो जाती है। और ये जिस दर्द को अवाम का दर्द आप दे रही हैं, नाम इसका, ये इक़्तिदार का दर्द है, ये मफादात का दर्द है और अल्टीमेटली ये उन ज़ाती मुकदमात का दर्द है जिस से आप मरहम हासिल करने के लिए अवाम को
मासूम आवाम को कानून की खिलाफ वर्जियों पे उकसा के उन्हें मुकदमात में फंसाना चाहती हैं। तो हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब की वाज़िया हदायत की बिना पे ये फैसला किया कि हम अपनी प्यारी अपोजिशन को किसी जगह भी रखना नहीं डालेंगे, रुकावटें नहीं डालेंगे। जो इन्फेक्शियस कंट्रोल डिजीज़ एक्ट है उसके तहत वो तमाम जो खिलाफ वर्जियाँ करने वाले अफराद होंगे उन्हें कानून के दायरा कार में लाएंगे। SOPs को फॉलो करके जो अदालत का फैसला है उसको सामने रखते हुए अपोजिशन जो शोर लगाना चाहती है हुकूमत उसमें कोई रखना नहीं डालेगी। लेकिन आपने देख लिया कि स्टेडियम के अंदर जलसे करने के दावेदार जो हैं उन्होंने अब सड़कों के ऊपर अपने इकट्ठ करना फेस सेविंग का सामान इकट्ठा किया है और स्टेडियम से खुद उन सामान को उठा के चौकों और चौराहों में ले आए हैं। तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि मुल्तान के अवाम ने वज़ीर आला की मावन ख़ुसूसी बराह इत्तलात फिरदौस आशिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के सेक्रेटरी और कंट्रोलर के अहदों पर तयनाती इल्तिवा का शिकार है। महकमा हायर एजुकेशन सियासी दबाव की बुनियाद पर मुस्तकिल तकर्रियां नहीं कर पा रहा। जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन पंजाब पर सियासी दबाव है और इस हवाले से आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी कंट्रोलर के अहदों पर तयनाती इल्तिवा का शिकार है। इस पर बात करेंगे अकमल सुमरो से। जी अकमल सुमरो। जी, पंजाब के सबसे बड़े तालीमी बोर्ड लाहौर बोर्ड को 1.5 बरस से जो है वो एडहाकिज़म पर चलाया जा रहा है और महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से लाहौर बोर्ड में सेक्रेटरी और कंट्रोलर के ओहदों पर मुस्तकिल तकर्रियों के लिए 9 जून को इंटरव्यूज़ लिए गए थे और इंटरव्यूज़ के लिए 2 जून को महकमे की जानिब से 15 उम्मीदवारों के नामों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिन उम्मीदवारों को इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया गया था। लेकिन 9 जून को होने वाले इंटरव्यूज़ के लिए आज तक जो है वो समरी को हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी और हमारे ज़राए के मुताबिक ये समरी बुनियादी तौर पर सियासी असर और रसूख की वजह से जो है वो रोकी गई है और महकमा हायर एजुकेशन आज तक इन 2 अहम तरीन ओहदों के ऊपर जो है वो मुस्तकिल तकर्रियाँ अमल में नहीं ला सका। हमारे ज़राए ने यह बताया है कि जिन 3 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था उन तीनों में जो सियासी असर और रसूख के हामिल उम्मीदवार थे उनके नाम शामिल नहीं थे, इसलिए समरी को आज तक जो है वो हतमी शक्ल नहीं दी जा सकी और समरी को हतमी शक्ल ना देने की वजह से आज तक लाहौर बोर्ड के अंदर जो है वो मुस्तकिल सेक्रेटरी और कंट्रोलर के ओहदों पर तकर्री अमल में नहीं आ सकी। इस हवाले से जब महकमा हायर एजुकेशन के हुकाम से ठीक है अकमल सुमरू, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स में 8 लाख बच्चों की बोगस एनरोलमेंट का इंकशाफ। साबिका दौरे हुकूमत में बोगस एनरोलमेंट स्कूल सरबराहान की जानिब से सख्त इंडिकेटर्स और तबादलों के डर से की गई। जी हाँ, इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि सरकारी स्कूलों में 8 लाख बच्चों की जाली एनरोलमेंट का इंकशाफ हुआ है। मामला क्या है, जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में तलबा की एनरोलमेंट की अगर बात की जाए तो 8 लाख बच्चों की बोगस एनरोलमेंट का इंकशाफ हुआ है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पंजाब के 48,000 स्कूलों में जो स्कूल सरबराहान को हदायत की गई थी कि बेफाम का इंदराज फौरी तौर पर किया जाए, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ 45% बच्चों का डाटा जो है वो अपलोड हो सका है। 55% बच्चों का डाटा जो है वो लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अजला में अभी तक अपलोड नहीं किया जा सका। और ये जो बोगस एनरोलमेंट है ये साबका दौरे हुकूमत में स्कूल सरबराहान की जानिब से की गई थी, क्योंकि स्कूल सरबराहान के ऊपर जो है वो सख्त इंडिकेटर्स और उनको तबादलों की जो है धमकियां दी गई थी कि उनके तबादले कर दिए जाएंगे अगर स्कूलों में बच्चों की तादाद मुकम्मल ना हुई। तो असातिज़ा ने अपने तबादलों के डर से जो है ये बोगस एनरोलमेंट की थी और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि वो स्कूल सरबराहान जो अपने बच्चों के बेफाम का इंदराज नहीं करेंगे 1 दिसंबर तक उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और यकीनन
बोगस एनरोलमेंट करने वालों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई कीजिएगा। दूसरी जानब पंजाब टीचर यूनियन का कि उन्हें 3 माह मजीद दरकार हैं, क्योंकि जी जुनेद बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सीईओ ओरिएंट मियां तलत महमूद का ओरिएंट का दौरा। मियां तलत महमूद ने मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मुलाजमीन के लिए हिफ्ज़ानी सेहत के उसूलों के मुताबिक खाना तैयार किया जाता है, मियां तलत महमूद की जानिब से बताया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं सीईओ ओरिएंट मियां तलत महमूद का ओरिएंट का दौरा। मियां तलत महमूद ने मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मुलाजमीन के लिए हिफ्ज़ानी सेहत के उसूलों के मुताबिक खाना तैयार किया जाता है, मियां तलत महमूद की जानिब से ये बताया क्या है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जंगी महाज बन गई। दोनों फरीकैन खुलकर आमने सामने आ गए। सीईओ ने चेयरमैन पर हिरासा करने का इल्जाम लगाते हुए खातून मुहतसिब को दरख्वास्त दी, तो दूसरी जानिब चेयरमैन ने सीईओ पर लफ्जों के तीर बरसा दिए। जी हाँ, आपको बताते चलें कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जंगी महाज बन चुकी है। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन एलटीसी और सीईओ एलटीसी के माबैन जो सर जंग जारी है। अब इसमें दोनों फरीकैन जो हैं वो खुलकर आमने सामने हैं। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल मीटिंग हुई, उसमें जो बदनज़मी है वो भी देखी गई और सीईओ की जानिब से अपनी जो टीम बनाई गई थी, जिसमें 2 मुस्ताफ़ी जो बोर्ड मेंबरान हैं वो शामिल थे और एक जो मौजूदा इंतज़ामी सेक्रेटरी हैं वो भी शामिल थे, तो उनको लेकर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से भी बाहर चले गई और बाकायदा तौर पर जो रोड़े अटकाए जा रहे हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, जो कि यकीनन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंपनी की कारकर्दगी के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है, लेकिन इसको होने से रोका जा रहा है। हमारे साथ चेयरमैन एलटीसी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, सामने आ रही हैं कि सीईओ की जानिब से आप जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं दफातर में, और आप पर हरासगी का भी इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया मुख्तलिफ औकात में। सूबाई मोहसिब, खातून मोहसिब के पास भी दरख्वास्त दी गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। उसमें ऐसा है कि मैं पहले तो बात है कि क्लियर कर दूं कि इसमें कोई हमारा कोई ज़ाती कोई मेरा एजेंडा नहीं है या ज़ाती मेरा मसला नहीं है, ये एक कंपनी का मसला है। मुझे हुकूमत की तरफ से अपॉइंट किया गया है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने चेयरमैन, अपने सीएम, अपने मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो चीज़ें हुई हैं मैडम ने की हैं, गलत किया है, उसमें उनको नहीं लाना चाहिए था जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। एक ये असूल की बात थी, वो मेरे भाई हैं जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। मैंने उन दोनों से कंफर्म किया था जब उनका रिज़ाइन आए, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पे कोई दबाव नहीं है और हम अपनी मर्ज़ी से देना चाहते हैं। तो एक दफ़ा हमने इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर उनका बोर्ड की मीटिंग में आना नहीं बनता था, तो उसमें कोई इंतज़ामी बात थी। लेकिन जो ये एक्ट था कि वो सीईओ का उठ के चले जाना और बाकी और मामलात, वो ठीक नहीं थे। सर मुझे बताएं, आपकी तब्दीली के हवाले से जो चहमगोइयाँ चल रही हैं, ठीक है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें जी, मैं इसमें भी बड़ा क्लियर हूँ। एक बात तो ये है कि लोग आते हैं, जैसे चेयरमैन की सीट पे आया तो उसके पास होते हैं। मैंने आज तक एक भी चीज़ अपनी पार्टी के, क्योंकि मुझे पार्टी ने एक ज़िम्मेदारी दी है, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं आया, गाड़ी के लिए नहीं आया और चीज़ों के लिए आया। मैंने आज तक एक पैसे का यहाँ से इंसेंटिव या कोई मराहत नहीं ली हैं। तो मसला ये है कि मेरी पार्टी ने मुझे किया है, मुझे इस लाहौर को, अपनी आवाम को एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम देना है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन आखिरी बात बता दीजिएगा, आप पर हरासगी का भी इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया है, जिस पर सूबाई मोहसिब, खातून मोहसिब ने आपको एक शोकॉज नोटिस भी जारी किया है। उसमें भी मैं बता दूं, उसमें थोड़ा सा क्लियर कर दूं। एक तो ये मैटर कोर्ट में है, लेकिन बात यह है कि हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने और मैंने, उन्होंने उनके कमरे में डिवाइस एक पकड़ी गई, तो उन्होंने एक लेटर लिखा कि मैडम ये आप बताएं कि किस वजह से डिवाइस, ऑडियो डिवाइस है, रिकॉर्डिंग क्यों हो रही है। एक बात तो ये थी, और दूसरी ये बात थी कि पेपर्स मांगना या किसी से कुछ तलब करना डिपार्टमेंट के हवाले से, या उसमें आपकी कोई हॉट वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं, वो इसमें आते नहीं हैं। लेकिन ये खैर मामला उसमें है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम उसको फ़ाइट भी करेंगे, हमें कोई वो डर खौफ नहीं है। हमने एक ही हमारा एजेंडा है, वो ये है कि 10 साल पहले जो कंपनी चली थी आज बंद क्यों है, बिल्कुल ज़ीरो पे क्यों है। और दूसरा हमारा एजेंडा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जो हमारे सीएम का, मिनिस्टर का विजन है, वो ये है कि लाहौर की ट्रांसपोर्ट को अच्छे तरीके से चलाया जाए और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इलेक्ट्रिक बसेज आएँ। तो ये हमारा एजेंडा है बस।
جی بالکل ایجنڈا یہ ہے کہ الیکٹرک بسز لائی جائیں اور اس کے علاوہ جو لاہور میں ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات ہیں وہ فراہم کی جائیں، لیکن موجودہ حالات ہیں کمپنی کے اندر جس کی وجہ سے کمپنی تباہی. عثمان علیم بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت دیکھتے رہیے سری فوری.